So students, from the last 2 days, we are discussing this chapter, photoelectric effect, chapter number 11 of your NCERT textbook, modern physics it is called. And yesterday class was very important class, and around 30 to 33 students yesterday joined the class. Some 8-9 students could not join. And Yash Sharma is come now. Very good. Yash Sharma. Yash Sharma, you have come now today. शक्ल दिखाने आए हो कि सर आप मेरे को कहीं भूल ना जाओ, इसीलिए मैं आ जाता हूँ. चलो आज आप एहसान कर देता हूँ थोड़ा सा, है ना. तो यश शर्मा, एक्चुअली योर अटेंडेंस इज वेरी वेरी लेस. ओके, वी आर प्लानिंग टू मेक द कॉल एंड some other remedial measures will be taken. So Yash Sharma, your class attendance is very poor. Did you have any genuine reason not to attend the class? Can you, if you are comfortable to share your problem with all, then there is no problem. Otherwise, you can message me separately. But whatever problem, at least you should inform first. Suppose you have any genuine problem, just like yesterday, one student Chidesh messaged me night. He has some bad health problems, some health issues, then he cannot attend the class. That is good. So that means now you have some genuine reason not to attend the class, and now I can know that why that particular student not joining the, so that I can justify also to the principal sir. Sometime he asks why the students are not attending the class. So if you have any genuine problem, then you can share. Otherwise, if you don't have any genuine problem, only you don't want to attend class or you are not willing, इच्छा नहीं हो रहा है, आज मूड नहीं हो रहा है, so only you are not attending class due to this reason. This is not good, student, because you are 12th class students and your board exams are there this year, and board exam आपके definitely होंगे, ठीक है ना. ऐसी बात थोड़ी है कि सिचुएशन थोड़ी एबनॉर्मल हो गई है तो हर चीज से आपको छुट्टी मिल जाएगी, पढ़ाई से भी छुट्टी मिल जाएगी और सब मजे करोगे, ऐसा थोड़ी कुछ है. सिस्टम थोड़ा सा सिस्टम ऑब्स्ट्रक्ट हुआ है, सिस्टम डिस्टर्ब हुआ है, लेकिन सिस्टम खत्म तो नहीं हुआ है ना. अपन ऐसा तो नहीं कह सकते एकदम सिस्टम खत्म ही हो गया है, पूरा चल रहा है, ठीक है. सिस्टम में थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन आ गए हैं, और ये इस बार जो थोड़ा अप्स डाउन आया वो थोड़े ज्यादा लेवल का आ गया है. इस तरह की प्रॉब्लम पहले कभी नहीं आई थी पिछले सालों में, इवन मतलब पिछले 50-60 सालों में भी नहीं आई होगी डेफिनेटली. लेकिन फिर भी स्टिल वी आर होपफुल कि सिस्टम कोई खत्म नहीं हुआ है एग्जाम का, और कुछ तो मतलब अभी पॉजिटिव होप्स है. भाई ऐसी बात नहीं है कि, और ऑनलाइन स्टडी अभी तो देखो सीबीएसई बोल रहा है कि ऑनलाइन स्टडी को सीरियसली लीजिए, स्कूल को भी बोल रहा है और बच्चों को भी बोल रहा है. Schools should take seriously this online study and students should also take seriously. Otherwise, they will, after you come to know that after some days they will announce the date of exams. है क्या मालूम, अभी by the end of this month CBSE announced some dates and now some students become in problematic, वो टेंशन में आ जाए, अरे कुछ पढ़ा तो है ही नहीं, कुछ पढ़ाई तो हुई नहीं, ये तो साल ऐसा निकल गया, स्कूल तो गए नहीं थे, ये वो ऑनलाइन में कुछ नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तो वो बड़े स्ट्रेस में आ जाएंगे. तो वो वाली बात है. इसलिए हम लोग आपके लिए रोज यहाँ पे आते हैं, आपके सामने अपना चेहरा लेके आपको शक्ल दिखाने थोड़ी आते हैं, आपको पढ़ाने भी आते हैं. ठीक है, टेक्निकल इश्यूज सब हो सकते हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम बच्चों को हो सकती है, इसमें कोई, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम हमेशा भी नहीं होती होगी, ऐसा भी मुझे लगता है, तभी तो सही चलता ही है. और तो यश शर्मा, ये सारी बातें स्पेशली आपके लिए है जो भी बोला जा रहा है, because you have come, my record says that you are coming at least, I think first time you are coming after midterm vacation. My record says that your attendance is almost zero. Yes Sharma, yes, only 24-25 your present is marked, and after 26 continue you are absent, and now you have come today. ठीक है बच्चों, तो थोड़ा सा यश शर्मा आपको बताई जा रही है सारी बातें, बाकी बच्चे तो आ ही रहे रेगुलर, बाकी तो सब जाने पहचाने नाम है. थोड़ा ट्विन सिस्टर का देख लेते हैं, आई नहीं आई आज, ट्विन सिस्टर्स आ गई नहीं आ गई, ट्विन सिस्टर आज भी नहीं दिख रहा है नाम उनका. दिव्यांशी आ गई है, यस, ट्विन सिस्टर्स भी आ गई है आज. चलो, ट्विन सिस्टर्स गायब हो गई थी 2-4 दिन के लिए, है क्यों गायब हो गई थी भाई, पता नहीं.
बच्चे मैसेज नहीं करते हैं। तो सबसे बड़ी जो मुझे प्रॉब्लम या सबसे बड़ी बात जो मेरे को जो प्रॉब्लम है वो ये है कि यदि आपको कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है तो आप टीचर को मैसेज करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं समझते हो। ठीक है ना। ये थोड़ा सा मेरे को प्रॉब्लम है। बाकी ठीक है, प्रॉब्लम सबके साथ होती है। सम 2 or 3 days you cannot attend the class, it is not so much big issue. But if you continue and don't attend the class, then it is big issue. So Rahul क्या ये यश शर्मा, you just take care, and Utkarsh Srivastav also in this category. He also does not attend the class regularly. उसको भी थोड़ा देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, उसको भी कॉल करेंगे आज। ठीक है ना। तो बच्चों देखो, क्लासेस आर बी अरेंज्ड फॉर योर बेनिफिट्स, तो दैट्स व्हाई यू शुड बी पॉजिटिव। और अभी हमारा सिलेबस देखो होने ही वाला है, थोड़े दिन का बचा है। अभी ये छोटे छोटे चैप्टर चल रहे हैं। ये देखो, ये वाला चैप्टर तो शायद आज या कल में खत्म ही हो जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला। फिर एटम वाला भी छोटा सा ही है, न्यूक्लियाई वाला भी रेडियो एक्टिविटी उसमें से पूरा डिलीट कर दिया, तो वो भी छोटा सा ही रह गया। तो वही हमारा सिलेबस छोटे छोटे चैप्टर्स है अभी। हार्डली अभी मान के चलिए कि 10 to 15 जनवरी तक मान के चलिए हमारा सिलेबस फिनिश हो जाएगा थ्योरी का, फ्रॉम आवर साइड। आपकी साइड से क्या है स्थिति वो आप जाने, है ना। तो अच्छी बात है, 38 स्टूडेंट्स आज है मेरी क्लास में। आई एम वेरी हैप्पी। 5 स्टूडेंट्स आर नॉट देयर। ठीक है, वो भी दिन आएगा जब 43 होंगे कभी ना कभी तो। ये शायद कल प्रिंसिपल सर के मैसेज का असर तो नहीं क्या 38 है। कल एक प्रिंसिपल सर ने मैसेज डाला था कि पेरेंट टीचर मीटिंग होगी, और तो इसलिए कई बच्चे अब डर के बोले यार फालतू पापा तक बात पहुंच जाएगी, चुपचाप क्लास अटेंड कर लो। देखिए, मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि आपको अपनी इच्छा से करना चाहिए, जो भी करना चाहिए, किसी के डर में या दबाव में नहीं। कोई आप पे दबाव, कोई आपको कह रहा है कि नहीं आपके खिलाफ एक्शन होगा तो आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, और आपको कोई कुछ ही नहीं कह रहा तो आप अटेंड नहीं कर रहे, दैट इज नॉट गुड। जो आपके अंदर अंदर से फीलिंग आनी चाहिए, वी हैव टू स्टडी, वी हैव टू डू समथिंग, हमें पढ़ाई पे थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है। यश शर्मा इज सेइंग दैट ही विल सेंड मी सम रीजन, बट पहले भी तो भेज सकते थे ना आप रीजन। पहले आपने आज तक, आप आज आगे बोल रहे हैं। हार्दिक सिंह हाड़ा दिख रहा है, हार्दिक सिंह चौहान नहीं दिख रहा है। ठीक है, चलो बच्चों खैर। तो स्टूडेंट्स, ओवर क्लास नाउ, वी स्टार्ट ओवर क्लास 10 ऑलरेडी 10:09 इज देयर। यस्टरडे आई डिस्कस द फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। कल मैंने आपको फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बताई थी, आपको यदि याद हो तो। यस्टरडे ओवर क्लास वाज टोटली डिपेंडिंग फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। यस, तो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के बारे में हमने बात की थी, एंड वेरी ब्यूटीफुल इक्वेशन। ब्यूटीफुल मतलब बहुत अच्छी इक्वेशन हमारी आई थी कल, है। आई लाइक दिस इक्वेशन वेरी मच, क्योंकि इससे बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। इस तरह की इक्वेशन हमारी आई थी, दिस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ठीक है, एंड आइंस्टीन ने इसको दिया था, एंड आइंस्टीन गॉट द नोबेल प्राइज फॉर दिस इक्वेशन। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि हमने फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में भी बात की थी कल। कट ऑफ वोल्टेज, मैं आपको बता रहा हूं बार बार कि कट ऑफ वोल्टेज बोल दो या स्टॉपिंग पोटेंशियल बोल दो, बात वही है। हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम को हमने लिख दिया था ईवी नॉट, एंड देन वी कैन राइट एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इक्वल्स टू ईवी नॉट, एंड देन आई कैन राइट वी नॉट इक्वल्स टू माइनस एच न्यू अपॉन ये। तो स्टूडेंट, ये रिलेशन था हमारा, द रिलेशन बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी, कि जब एक्सपेरिमेंटल स्टडी हुई थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, तो एक्सपेरिमेंटल स्टडी में, एक मिनट थोड़ा सा, नाउ इट इज ओके आई थिंक। तो एक्सपेरिमेंटल स्टडी में ये देखा गया कि भाई स्टॉपिंग पोटेंशियल तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है, इंटेंसिटी पे तो डिपेंड कर ही नहीं रहा है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्लासिकल फिजिक्स वाली बोल रही थी कि नहीं, ये तो इंटेंसिटी डिपेंड करना चाहिए। लेकिन जो एक्सपेरिमेंट में जो चीज आ रही है उसको हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं, वी कैन नॉट इग्नोर इट विच इज ऑब्जर्विंग इन एक्सपेरिमेंट। तो वहां पे फिर हमारी क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी फेल हो गई थी, और इसलिए फिर आइंस्टीन ने देखो यह मैथमेटिकली प्रूव कर दिया बच्चों, द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज अ लीनियर फंक्शन। लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा यहाँ पे, स्ट्रेट लाइन ग्राफ विद द पॉजिटिव स्लोप एंड नेगेटिव इंटरसेक्शन। नाउ यू कैन सी
You can compare this graph with the y equals to mx minus c. ये कल का लास्ट वाला मैं थोड़ा रिकैप में ले रहा हूँ। कल लास्ट में मैंने ये बताया था, यहीं पे हमारी क्लास खत्म हो गई थी कल, तो उसी को मैं थोड़ा सा लेकर और आगे बढ़ेंगे आज हम। ये वैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो ही गया है हमारा, कंप्लीट ही है। तो फ्रीक्वेंसी वर्सेज स्टॉपिंग पोटेंशियल, सॉरी फ्रीक्वेंसी वर्सेज स्टॉपिंग पोटेंशियल ग्राफ। तो y इक्वल्स टू एम एक्स माइनस सी, तो c का जगह पूरा ये एच न्यू नोट बाई सी ई है। एच न्यू नोट को अपन w भी बोलते हैं, वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन पर यूनिट इलेक्ट्रॉन वी कैन से, न्यू की जगह x आ गया, और h बाई ई मतलब स्लोप, m को अपन स्लोप बोलते हैं स्ट्रेट लाइन ग्राफ में, एंड y की जगह v नोट। तो वी कैन इजीली ड्रॉ द पॉजिटिव स्लोप, स्लोप तो पॉजिटिव है बट नेगेटिव इंटरसेक्शन, and this negative intersection is h e naught upon e, this is, so this is the graph, and ये वाला जो गैप है इसको क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट। it will show the threshold frequency nu naught. So what we can say, slope of the stopping potential versus frequency curve or graph that is equals to h upon e, लिख सकते हैं ना। स्लोप यहां से देखिए, m को अपन स्लोप बोलते हैं tan थीटा, और दैट इज h बाई ई। तो यहां से h की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लांक कांस्टेंट e इंटू स्लोप ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ। थोड़ा सा आउट चला गया शायद, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं कैमरा और सेट कर देता हूं, एक मिनट। यस, नाउ आई थिंक वो जो थोड़ा चला गया इधर आ गया हो। ओके, नाउ आई थिंक इट इज विजिबल, ठीक है। तो बच्चों ये है, तो यहां से अपन देखो प्लैंक कांस्टेंट निकाल सकते हैं। ये मैंने देखो क्यों बताया आपको कि हम यहां से क्या निकाल सकते हैं, वी कैन फाइंड आउट द सोमिलियन ऑलरेडी आई हैव रिव्यूड द क्वालिटी, मैंने ऑटो पे डाल दिया है, नाउ इट इज नॉट एट 720। इससे कम क्वालिटी कर देंगे तो फिर वो, इससे कम क्वालिटी एक्चुअली हो भी नहीं पाएगी। मैं और एक बार देख ले रहा हूं, अभी मैंने ऑटो पे डाल दिया है बच्चों इसको। ऑटो का मतलब वो कम ही लेता है, ठीक है। 7 हाई डेफिनेशन पे अभी नहीं डाला है, ऑटो पे डाल दिया है मैंने इसको, वीडियो को। अभी इससे कम होगा तो ये आपको ब्लर दिखने लग जाएगा एकदम, बाकी बच्चों को भी प्रॉब्लम होगी, है ना। अभी ब्लर दिखने लग जाएगा, फिर वो वर्ड्स पढ़ने में नहीं आएंगे। अभी मैंने उसको ऑटो पे डाल रखा, ऑटो मतलब वो वही 480 पिक्सल्स के आसपास आपका आ रहा है उसमें, 720 से मैंने उसको हटा दिया है, ठीक है ना। चलिए, तो दैट इज ओके। तो यहां से अपन प्लांक कांस्टेंट निकाल सकते हैं बच्चों। Comparing the equation with standard equation, we can see that the slope of the m frequency versus stopping potential graph is h by e. So that slope of stopping potential versus frequency curve is h by e. Then h equals to e को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे e into stopping potential versus frequency curve का slope. दिस इज, ठीक है चो। तो दैट है, तो यहां से प्लांक कांस्टेंट का वैल्यू सभी को पता है, ठीक है। वीडियो इज नॉट लैगिंग, सम नेटवर्क प्रॉब्लम शुड बी देयर, वीडियो का कोई लैग नहीं होना चाहिए। तो एच न्यू, सॉरी ई, स्लोप ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ को यदि अपन इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दें बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिल जाता है, h का वैल्यू मिल जाता है। वी गेट द वैल्यू ऑफ एच, ठीक है स्टूडेंट्स। तो दैट ऑल। अब देखिए तो देखो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस ने सारी बातें क्लियर कर दी एकदम, कि भाई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी यहाँ पे नहीं होगी। तो देखो ये ग्राफ इसलिए ओरिजिन से भी स्टार्ट नहीं हो रहा है, दिस ग्राफ इज नॉट स्टार्टिंग विद ओरिजिन। इसका मतलब जीरो फ्रीक्वेंसी से कभी भी हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट नहीं हो सकता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के स्टार्ट होने के लिए मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर वैल्यू तो होनी ही चाहिए हमारे पास, है ना। तो ये सारी बातें थोड़ी सी आपको पता होनी चाहिए। कई बार पेपर में एक क्वेश्चन आया है, वो हालांकि कुछ है नहीं क्वेश्चन इतना, लेकिन वो क्वेश्चन क्या है बच्चों को समझ में नहीं आता कि उसमें लिखे क्या, क्या है वो क्वेश्चन।
बोलता लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, वो कुछ भी नहीं है, मतलब अपन ने लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कई बार मैंने देखा है बोर्ड पिछले लास्ट ईयर के पेपर्स में ये क्वेश्चन आपको आया हुआ मिलेगा कि राइट द लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि बाकी तो लॉ लॉ कुछ भी नहीं है बच्चों। लॉ इन द सेंस जो भी अपन ने मतलब आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बातें बताई थी उनको बस थोड़ा सा आप पॉइंट्स बना के लिख देना तो वही लॉ हो गए। ठीक है, जैसे कि अपन ने पहली बात क्या देखी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बस ये लॉ। लॉ मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में जो भी कंसेप्ट है, जो भी बातें हैं उनको आप, आई थिंक अभी मैं, आई थिंक ये 38 बच्चे हैं यहाँ पे इस टाइम, है ना, एक वर्षा शायद आ जाएगी, कोई बात नहीं। तो नाउ आई थिंक इट इज द बेस्ट टाइम टू टेक द स्नैपशॉट फॉर अटेंडेंस ना, आई थिंक अभी 38 से ज्यादा तो क्या आएंगे, है ना, 37 है, वो वर्षा शायद स्किप कर गई है, कुछ टेक्निकल इश्यू हो रहा होगा उसके साथ। ओके, आई विल मार्क हर अटेंडेंस, नो प्रॉब्लम। एंड बाकी बच्चों की भी मैं स्क्रीनशॉट स्नैपशॉट ले लेता हूँ। आई थिंक इट इज द बेस्ट टाइम फॉर टेकिंग द स्नैपशॉट ऑफ योर नेम्स। ठीक है ना, बिकॉज 37 स्टूडेंट्स आर देयर एंड इफ एनीबडी कम्स वी विल सी। सर मैं हूँ यहाँ पर। है क्या बोल रहा है बेटा? सर मैं क्लास में ही हूँ, मैंने लेफ्ट नहीं करा। ओके, अच्छी बात है। एक मिनट में कुछ और देख रहा था, दिव्यांश चौधरी तक के नाम आ गए ना। हाँ अभी देख लेते हैं, दिव्यांश चौधरी तक के आ गए, उसके बाद भी ले लेते हैं। ये देखो, ये तरीके से, ये तरीका मुझे इसलिए अच्छा लग रहा है कि इसमें हमारा अटेंडेंस लेने का टाइम बच गया। देखो वरना अटेंडेंस लेने में हमारा कई बार टाइम 15-20 मिनट खराब हो जाते हैं हमारी क्लास के, जो मैं बचाना चाह रहा हूँ थोड़ा सा। अरे आज तो ज्यादा बच्चे हैं, तो 4 फोटो लेनी पड़ेगी मेरे को। आपके 4 फोटोज में नाम कंप्लीट आ रहे हैं सबके, ठीक, अच्छी बात है। हाँ वर्षा पोसवाली हैज नाउ कम। ओके वेरी गुड। उत्कर्ष श्रीवास्तव को भी थोड़ा टाइट करना पड़ेगा भी, आज यश शर्मा आया है नाउ। यस आई थिंक यू शुड कम रेगुलरली। ओके, उत्कर्ष श्रीवास्तव अगला टारगेट है, उसको भी थोड़ा लाइन पे लाते हैं, थोड़ा क्या प्रॉब्लम आ गई उसको। ठीक है चलो, बच्चे तो आते जाते रहते हैं। तो मैं क्या कर रहा था, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। तो लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मीन हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन डिटेल से पढ़ी है उनको हम बस थोड़ा सा ब्रीफली हम उनको पॉइंट्स में लिख दे। जैसे कि पहला लॉ तो यही हो गया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नॉट पॉसिबल बिलो ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, दैट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, ये एक लॉ बन गया। सेकेंड लॉ वी कैन राइट photoelectric current depends on the intensity of radiation linearly, directly proportional to the intensity of radiation. थर्ड लॉ हमारा ये बन गया, cutoff voltage at which the photoelectric current becomes zero does not depend on intensity, it depends on the frequency. ठीक है, और एक फोर्थ लॉ भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे, कि फोर्थ लॉ आप लिख सकते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट। भाई जो आपका प्लांक का क्वांटम प्रिंसिपल है, जिसमें फोटोन के रूप में लाइट को अज्यूम किया गया है, लाइट को कंसीडर किया गया है कि एनर्जी पैकेट और बंडल के फॉर्म में लाइट आपकी आ रही है, रेडिएशन आ रहा है, तो वो एक तरह से पार्टिकल नेचर ही है। इसे ही को बोलते हैं लाइट का पार्टिकल नेचर। फोटोन के रूप में लाइट का आना, लाइट रेडिएशंस का या कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का फोटोन के रूप में एग्जिस्ट करना, मतलब उनकी एनर्जी को एक फोटोन पार्टिकल के रूप में विजुलाइज करना ही है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ये भी लॉ बन गया है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय द वेव थ्योरी ऑफ लाइट, इट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट। तो ये आपके मतलब लॉज कभी आ जाए तो कभी कंफ्यूज मत होना कि लॉज क्या लिखे, मतलब जो भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बातें हमने मेन मेन बातें हमें बताई, यही आपके लॉज बन जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए नाउ इट्स टाइम फॉर टेकिंग सम न्यूमेरिकल्स में और करा देता हूँ। ठीक है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो इतना ही था हमारे कोर्स के हिसाब से, और मैं कुछ एक आधा न्यूमेरिकल, 2 न्यूमेरिकल मैं यहाँ पे आपको कराना चाह रहा हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि थोड़ा सा इसके न्यूमेरिकल्स कैसे होते हैं। देखो एक 11.8, यदि आप एनसीईआरटी लेके बैठे हैं तो 11.8 आप देखिए, आपकी एक्सरसाइज का ही ले लेते हैं ताकि एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी हमारे निकल जाएंगे हाथों से। एक बार अपना 8th क्वेश्चन देखिए एक्सरसाइज का, 11.8 क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, मेरे सामने है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर ए सर्टेन मेटल इज 3.3 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब न्यू नॉट ले लेते हैं, 3.3 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। ओके,
दिस इज योर टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आई एम टेकिंग एनसीईआरटी में, जो एक्सरसाइज वाला आपके है पेज, उसमें आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में ले रहा हूं। एंड इफ द लाइट फ्रीक्वेंसी इज 8.2 into 10 की पावर 4 hertz न्यू, that is the frequency of light 8.2 into 10 की पावर 14 hertz. okay, इंसिडेंट ऑन द मेटल, ठीक है। प्रिडिक्ट द कट ऑफ वोल्टेज, इसको क्या चाहिए भाई, देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्वेश्चन सिंपल फॉर्मूला बेस्ड ही है। कट ऑफ वोल्टेज, व्हाट इट वांट्स, कट ऑफ वोल्टेज या थ्रेशोल्ड, सॉरी स्टॉपिंग वोल्टेज क्या होगा, व्हाट विल बी द स्टॉपिंग वोल्टेज और कट ऑफ वोल्टेज। तो दैट इज द क्वेश्चन। कैसे करेंगे बताइए, सोचिए, लगाइए दिमाग अपना अपना। इट इज वेरी सिंपल, एच न्यू माइनस न्यू नॉट इक्वल्स टू ईवी नॉट, बता दिया था ना अभी अपन ने। हाफ एम वी स्क्वायर को अपन ने ईवी नॉट से रिप्लेस कर दिया था, तो ईवी वी नॉट हो जाएगा एच न्यू माइनस न्यू नॉट अपॉन ई। ये हमारा वोल्ट में आंसर आ जाएगा। अब कुछ ही नहीं करना, वैल्यू रखनी है बस आपको। तो यू विल गेट द स्टॉपिंग पोटेंशियल 6.6 into 10 की पावर माइनस 34। ऑल आर कंफर्टेबल विद वॉइस वीडियो एक्सेट्रा आई थिंक, है ना? यस, कोई बात प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं। 38 बच्चा था, अभी 37 ही रह गया, तो एक बच्चा कोई ऐसा है जो लेफ्ट करा हुआ है इस टाइम पे, उसका नाम पकड़ में नहीं आ रहा, उसकी भी अटेंडेंस लगा देंगे, आया तो था बेचारा एक बार। ओके, ठीक है, कर लेंगे आई थिंक अब तो इसको। और देखो 8.2 इंटू 10 की पावर 14 माइनस 3.3 इंटू 10 की पावर 14 डिवाइडेड बाय ई, इलेक्ट्रॉन चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। इसको आपको देखो और इजीली सोल्व हो जाएगा, 10 की पावर 14 6.6। बाकी आप लोग भी सोल्व करके आंसर भेजिए मेरे को। देखो 10 की पावर माइनस 34 प्लस 19, और देखो 10 की पावर 14 कॉमन आ जाएगा, तो वो प्लस 14 यहां भी जुड़ जाएगी, और ब्रैकेट में आ जाएगा 8.2 माइनस 3.3। तो 8.2 माइनस 3.3 कितना होगा, नाउ यू कैन सी, ये हो जाएगा आपका 4.9 रह गया क्या, 4.9, ठीक है, तकरीबन 5 मान सकते हैं, 4.9 ही ले लो, लेकिन फिर डेसिमल का प्रॉब्लम आएगा। तो ये आ जाएगा 66 इंटू 4.9 अपॉन 16 इंटू, नाउ यू कैलकुलेट दिस, आई थिंक दिस इज 10 रेज टू पावर माइनस 1, ये 33 हो गया, 33 हो गया ना ये, तो 10 की पावर माइनस, तो प्रज्ञा अमरावत वर्षा 2.02, वेरी गुड, यस। कई बच्चों के आंसर तकरीबन सेम आ रहे हैं, तो आई कैन एक्सेप्ट दिस, 2.02 वोल्ट इज द राइट आंसर, वेरी गुड। ठीक है बच्चों, तो अच्छी बात है, ठीक है, यू आर रेस्पॉन्डिंग वेरी गुड। तो इस तरह से तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, और इस पे थोड़ा सा एक टाइप के क्वेश्चंस और मैं कराता हूँ। देखिए एक क्वेश्चन आता है, एक देखिए 11.5, देखिए यदि आप एनसीईआरटी लेके बैठे हैं तो, आई आल्सो रीड दिस क्वेश्चन, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 11.5 देखिए आप अपनी टेक्स्ट बुक में। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 11.5? थोड़ा डिफरेंट टाइप का है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ही थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, हालांकि बहुत इजी है। एक्चुअली देखो सेकंड बुक में न्यूमेरिकल का कोई टेंशन नहीं है ज्यादा, बहुत इजी न्यूमेरिकल होते हैं सेकंड बुक के, केवल थोड़ा लाइट वाले रे ऑप्टिक्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। बाकी रे ऑप्टिक्स के अलावा जितने भी अदर चैप्टर्स हैं उनके न्यूमेरिकल्स बहुत मॉडरेट होते हैं, फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, घुमा के नहीं आते हैं, लेकिन थोड़े से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में वहां पे घुमा देते हैं। और फर्स्ट पार्ट जो है हमारे फर्स्ट बुक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जिसके अंदर दिया हुआ, उसमें थोड़ा न्यूमेरिकल का चक्कर है, तो आपको न्यूमेरिकल की जो ज्यादा एफर्ट्स है वो फर्स्ट बुक में लगाने हैं। सेकंड बुक में तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन से ही आपका मैक्सिमम काम हो जाता है। तो देखिए 11.5 क्वेश्चन देखेंगे अपन। एनर्जी फ्लक्स ऑफ सनलाइट रीचिंग टू द सरफेस ऑफ अर्थ इज
1.388 इंटू 10⁻³ वाट पर मीटर स्क्वायर। देखो वाट पर मीटर स्क्वायर मतलब हो गया पावर पर यूनिट एरिया। क्या हो गया? पावर पर यूनिट एरिया। देखो वाट मतलब पावर और मीटर स्क्वायर मतलब एरिया। तो फ्लक्स का मतलब हो गया पावर रिसीव्ड बाय द सरफेस पर यूनिट एरिया। दिस इज कॉल्ड एनर्जी फ्लक्स। तो दैट एनर्जी फ्लक्स इज यू कैन से वन, क्या था वैल्यू? 1.388, यस, इंटू 10⁻³ ओके। 1.388 इंटू 10⁻³ वाट पर मीटर स्क्वायर, ये हमारा वैल्यू है एनर्जी फ्लक्स का। हाउ मेनी फोटोन्स पर स्क्वायर मीटर इंसिडेंट ऑन द अर्थ पर सेकेंड? अज्यूम दैट द फोटोन इन द सनलाइट हैव द एवरेज वेवलेंथ 550 नैनोमीटर। तो बच्चों ये बोल रहा है हाउ मेनी फोटोन्स पर स्क्वायर मीटर, मतलब पर स्क्वायर मीटर पे सारा मामला चल रहा है। सारा मामला कहां पे चल रहा है? पर स्क्वायर मीटर पे ही चल रहा है। तो ये भी पर स्क्वायर मीटर ही, तो अपन पर स्क्वायर मीटर को पर स्क्वायर मीटर ही रहने देते हैं। यदि यहाँ पे एरिया दिया हुआ होता सरफेस का, तो अपन टोटल एरिया पे अपन क्या निकाल लेते? पावर निकाल लेते कि भाई सन की कितनी पावर आ रही है। भाई ये हमारा क्या है? पावर पर यूनिट एरिया है। अब यदि यहाँ पे एरिया दिया हुआ होता कि भाई कितनी सरफेस एरिया पे, समझ में आ रही है बात? अभी इसने बोल रहा है कि हाउ मेनी फोटोन्स पर स्क्वायर मीटर। अब यहाँ पे पर स्क्वायर मीटर से बोल देता कि भाई अर्थ के ऊपर कुछ एरिया मान लेता, जैसे कुछ भी मान लेता 500 मीटर स्क्वायर एरिया। तो अर्थ के ऊपर 500 मीटर स्क्वायर एरिया में कितने फोटोन आएंगे? तो अपन फिर वहां से क्या कर लेते? इस वाली वैल्यू को 500 से मल्टीप्लाई करके 500 मीटर स्क्वायर एरिया में जो पावर आ रही है सन की, वो निकाल देते। भाई यदि ये चीज आपकी एरिया से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो केवल क्या रह जाएगा? वॉट रह जाएगा। वॉट मतलब पावर। वॉट इट और नॉट। लेकिन इसने क्या एरिया नहीं दिया, ये पर मीटर स्क्वायर में ही बात कर रहा है, तो अपन इसको पर मीटर स्क्वायर ही दे देते हैं। ठीक है, तो मतलब जो भी वैल्यू आएगी हमारा आंसर वो पर स्क्वायर मीटर में ही चलेगा सारा मामला। और पर सेकंड, तो एक बात बताओ, ये चीज आपकी क्या है? इसको मैं ऐसे लिख दूं, जूल पर सेकंड। वाट को मतलब जूल पर सेकंड लिख सकते हैं। तो ये आपकी एक तरह से पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर एरिया की एनर्जी होगी, नहीं होगी? इसको अपन क्या लिख सकते हैं? पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर एरिया की एनर्जी होगी, नहीं होगी? क्या हो गई? अब अपन ये मान लें लेट नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंट, लेट नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंट पर मीटर स्क्वायर एरिया पर सेकंड। वही बात आ गई, यहां पे भी पर मीटर स्क्वायर एरिया लिख देते हैं अपन। अब अपन ये मान लेते हैं कि अर्थ के पर मीटर स्क्वायर एरिया पे पर सेकंड नंबर ऑफ फोटोन्स कितने? एन। तो टोटल एनर्जी पर मीटर स्क्वायर एरिया पर सेकंड। तो पर मीटर स्क्वायर एरिया पे पर सेकंड टोटल एनर्जी हो जाएगी एन इंटू एच न्यू, हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? अरे एक फोटोन की एनर्जी होती है एच न्यू। हमने अज्यूम कर लिया कि पर मीटर स्क्वायर एरिया पर सेकंड टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स एन है। तो पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड एनर्जी कितनी होगी? एन इंटू एच न्यू टोटल एनर्जी। और ये वाली भी तो क्या है देखा जाए तो, ये वाली एनर्जी भी क्या है? पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर एरिया ही तो है देखा जाए तो। सन से जो एनर्जी फ्लक्स, अरे ये जो एनर्जी फ्लक्स दिया हुआ है ये भी तो पर मीटर स्क्वायर एरिया की पर सेकंड एनर्जी है। तो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। और एक्चुअली आप यदि क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ पा रहे हैं, कैलकुलेट द हाउ मेनी फोटोन्स पर स्क्वायर मीटर पर सेकंड, एक्चुअली वो जो पूछ रहा है वो एन, हमने एन ऑलरेडी उसी को मान लिया है। हमने एन को क्या बोला है? पर मीटर स्क्वायर एरिया पर सेकंड पे नंबर ऑफ फोटोन जो इंसिडेंट हो रहे हैं वो लिए। और वही ये एग्जाम में पूछ रहा है। वही क्या पूछ रहा है? ये एग्जाम में पूछ रहा है। एग्जाम इन द सेंस मतलब इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। एग्जाम मतलब वही बात होगी, कभी ना कभी एग्जाम में भी आ ही जाएगा, कोई बात नहीं। तो मैं ये कह रहा हूं कि एक फोटोन की एनर्जी एच न्यू, तो टोटल एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकंड हो गई एनएच यू। और ये वाली जो वैल्यू है 1.388 न्यू 10⁻³ ये भी वही है, पर मीटर स्क्वायर पर एरिया पर सेकंड, सॉरी पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड एनर्जी। तो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं ना। और जब इनको आप इक्वेट कर दोगे 1.33 इंटू 10⁻³ तो यहां से n की वैल्यू आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? 1.33 इंटू 10⁻³ अपॉन एच न्यू। और
न्यू को लिख दो, क्योंकि इसमें न्यू नहीं दिया हुआ तो न्यू निकाल लो, तो आप पहले सी बाई लैम्डा से। तो इसमें लैम्डा दे रखा है, देखो आप लास्ट में क्वेश्चन की लास्ट लाइन में लैम्डा दे रखा है आपको, तो वहां से न्यू निकाल लो। 3 × 10⁸ अपॉन 550 नैनोमीटर, यही बोला था यार। तो वेवलेंथ इज 550 नैनोमीटर, यानी 550 × 10⁻⁹ 550 × 10⁻⁹ तो दैट इज, इसको थोड़ा सा देख लीजिए, सोल्व कर लेंगे। 8 और 9 ऐड हो जाएंगे तो 17 हो जाएंगे, 10⁻17। तो 17 हो जाएंगे, तो इसको 300 को 2 जीरो और दे दो, तो 550 × 10⁻15। एक काम करो, 3 जीरो दे दो, तो यहाँ 10⁻14। भाई 8 + 9 17 हो जाएगा, तो 17 में से 3 जीरो मैंने 3 को दे दी, तो यहाँ मेरे पास बच गया 10⁻14, और एक जीरो ये कैंसिल हो गई, तो 300/55 हो गया। इसको आप ज्यादा ज्यादा 11 से काट सकते हैं, तो ये हो गया 600 नहीं, सॉरी 60 बचेगा ना, 60/11। तो ये हमारा वेवलेंथ आ गया। तो नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट एरिया पर सेकंड आ जाएंगे 1.33 इंटू 10⁻3। एच की वैल्यू डालनी है 6.6 इंटू 10⁻−34, और न्यू की वैल्यू आपकी हो गई 60/11। तो 60 और 11 ऊपर आ जाएगा, और 10⁻14, ये -14 हो जाएगा ऊपर आके, कोई बात नहीं। तो दैट इज, तो इसको थोड़ा सा आपको सोल्व करना होगा बच्चों, एंड यू विल गेट द आंसर। यस, C/λ। यस दिवांशी जैन, यू आर राइट। प्रज्ञा का आंसर आ रहा है 3.84 इंटू 10⁻21 फोटोन पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। 4 इंटू 10⁻24 दिवांशी का आंसर आ रहा है। हाँ, वो 3.84 को रफली वो 4 लिख देंगे। 3.84 वर्षा का आ रहा है। हाँ, तो दिवांशी ने उसको राउंड ऑफ कर दिया होगा, वो भी ठीक है वैसे तो। आपको लेकिन 3.84 ही लिखना चाहिए, थोड़ा फर्क है 4। यदि 3.84 आ रहा है, एक्चुअली एक्चुअली मैंने कैलकुलेट नहीं किया है, मैं तो आपके आंसर्स पढ़ रहा हूँ सामने। यदि 3.84 आ रहा है तो 3.84 ही लिखना सही रहेगा, 4 नहीं लिखना है ना। तो जो भी है, खैर इसका आंसर 3.84 इंटू 10⁻21 आ जाएगा। ओके सर, ठीक है। तो स्टूडेंट, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू कैन डू। बाकी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस इसी तरह के आपको मिलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। आप इसमें 11.1 से लेकर 11.19 तक के क्वेश्चंस, इसमें कुछ क्वेश्चन डी ब्रोगली के भी आ गए, वो भी बता देता हूँ मैं भी, डी ब्रोगली भी वो आप कर सकते हैं। मतलब टोटल 19 क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। इस चैप्टर के जो टोटल 19 क्वेश्चन है वो डायरेक्ट क्या है, फॉर्मूला बेस्ड है, तो वो आप कर सकते हैं। ये वाले क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट तरीके के थे जो मैंने बता दिए। इसमें कई बार क्या कर सकता है, वो आपको एरिया का वैल्यू दे देगा कि भाई अर्थ के 500 मीटर स्क्वायर एरिया पे पर सेकंड कितने फोटोन गिर रहे हैं। तो आप कुछ ही नहीं करना, इसको 500 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगी एनर्जी पर सेकंड, बन जाएगी बस। मतलब फिर पर मीटर स्क्वायर एरिया नहीं आएगा, क्योंकि एरिया को वैल्यू दे दिया ना आपको। तब आप वहां पे एन को क्या मान लेना, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड। एन को भी क्या मान लेंगे, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड। तो वो पर सेकंड एनर्जी एनएच न्यू। और ये भी हमारी कौन सी एनर्जी रह जाएगी, फिर पर सेकंड एनर्जी रह जाएगी। आई थिंक यू आर गेटिंग व्हाट आई वांट टू टेल। यदि किसी क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में एरिया यूनिट ना मान के उस एरिया की वैल्यू दे दी जाए, कुछ भी दे देगा, 500 600 मीटर स्क्वायर जो भी है, तो आप उस एरिया को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर वाली से, तो वो बन जाएगा जूल पर सेकंड, यानी वाट बन जाएगा बस केवल। फिर वो वाट पर मीटर स्क्वायर रहेगा, वो क्या बन जाएगा, ओनली वाट बन जाएगा, यानी जूल पर सेकंड। तब आपको यदि नंबर ऑफ फोटोन, फिर आपको पूछेगा नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम निकालो। तब आप वहां पे एन क्या मानना, नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम। पर मीटर स्क्वायर मत लिखना, क्योंकि अब तो आपने एरिया को मल्टीप्लाई कर दिया। उस तरह से फिर आपको एन आ जाएगा, नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड। गॉट इट। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको थोड़े ध्यान रखने हैं। फ्रीक्वेंसी दे देगा डायरेक्ट, कई बार वेवलेंथ दे देगा, वो कुछ भी दे दे, वो तो हमारा काम, सामने फॉर्मूला यदि है तो हम आराम से जो है वो क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं। तो दैट यू ऑलवेज कीप इट इन योर माइंड। दैट इज ठीक है बच्चों। सो ये हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक कंसेप्ट क्लियर हुआ, सबको हो जाना चाहिए।
If any doubts in photoelectric effect, you can ask me. I will definitely try to solve your doubt. There are so many types of the questions can be asked in photoelectric effect. जैसे यहाँ पे कई बार ये क्वेश्चन बोर्ड में कई बार मिलेगा आपको, इस तरह से दो ग्राफ दे देगा, एक मटेरियल ए और एक मटेरियल बी, बोलेगा कि किस मटेरियल का वर्क फंक्शन ज्यादा है। दिस ग्राफ इज बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये बता देते हैं पहले। द ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी इज गिवन लाइक दिस, विच मटेरियल हैज मोर व्हाट वी कैन से स्टॉपिंग मोर वर्क फंक्शन, किसका वर्क फंक्शन ज्यादा है। तो अपन ने जब कभी ये ग्राफ बनाया था तो अपन ने इस इंटरसेक्शन को बोला था, याद हो तो, एच नोट अपॉन ई। तो ये आपका जो बी वाला है उसका वर्क फंक्शन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस कई बार आपको प्रैक्टिस कर लेने थोड़ा सा आ जाते हैं। ठीक है, स्लोप तो उसका क्या है, एच अपाई ई है, तो वो तो कांस्टेंट ही है। और यहां से आपको ये भी पता लग गया होगा कि प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू कहां से आई। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट करके उसमें हम स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का टेबल बना लें और स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बना लें एक्सपेरिमेंटल डेटा से। वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, उस स्ट्रेट लाइन ग्राफ का स्लोप को एच बाई ई से मल्टीप्लाई, एच बाई ई के इक्वल रख के एच निकल जाएगा ना, और वो एच वही आएगा तकरीबन 6 पॉइंट जो भी हमारा होता है। प्लांक कांस्टेंट इज यूनिवर्सल कांस्टेंट, इट्स वैल्यू ऑलवेज रिमेन सेम, 6.62 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। तो ये वैल्यू कहां से आई होगी, इसका जवाब भी हमको इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले टॉपिक में मिल जाता है। ठीक है, कि भाई आप स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का टेबल बना लीजिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट करके। ठीक है ना, यस। इसके बाद आता है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन। इसके बाद आता है ये चैप्टर का सेकंड पार्ट, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन। एक्चुअली चैप्टर का नाम में ये पहले लिखा हुआ था, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो अपन ने पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ले लिया और जो पहले लिखा हुआ था वो बाद में ले रहे हैं ड्यूअल नेचर, क्योंकि अब एक्चुअली मैंने एनसीईआरटी के सीक्वेंस को फॉलो किया है। आपकी टेक्स्ट बुक में भी पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन कर रखा और फिर ड्यूअल नेचर उसके बाद दे रखा, तो मैंने भी वही सीक्वेंस फॉलो किया है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन चैप्टर का जो नाम है उसमें आप देखेंगे ड्यूअल नेचर रेडिएशन पहले लिखा हुआ है, फोटो इलेक्ट्रिक बाद में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बच्चों इसको डी ब्रोगली हाइपोथेसिस भी बोलते हैं, और जहां तक मैं सोचता हूं कि ये आप लोगों ने कहीं ना कहीं स्टडी करी है, लोअर क्लास में भी 11th में भी कहीं ना कहीं आपने पढ़ी है। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस इसको बोलते हैं। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस मतलब एक्चुअली स्टूडेंट स्टार्टिंग में देखो लाइट की कॉर्पुसल्स थ्योरी बताई गई, जो मैंने रे ऑप्टिक्स पे पर बात की थी। लाइट को पार्टिकल्स माना गया, फिर लाइट को वेव माना गया। अभी लाइट को वेव मान के अभी हमने एक्सप्लेन नहीं किया, वो वेव ऑप्टिक्स वाला एक चैप्टर में मैंने छोड़ रखा है। वो चैप्टर में आपको हम बताएंगे कि लाइट को वेव मान के अपन कैसे एक्सप्लेन करते हैं कुछ फिनोमिनास को। तो कुछ फिनोमिना जैसे कि डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ये अभी हमने नहीं पढ़ाई है आपको, आई नो दैट। ये हम आपको बताया वेव ऑप्टिक्स वाले चैप्टर में आएगा, दैट विल स्टडी सून। बट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डेवलपमेंट होते होते ये बात समझ में आ गई कि यार जब अपन डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस ये बात पढ़ रहे थे, पोलराइजेशन, तो हम लाइट के वेव नेचर को कंसीडर कर रहे थे। लेकिन जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसी फिनोमिना आई एग्जिस्टेंस में, उसको खोजा गया, उसको रिसर्च किया गया, तो फिर लाइट की वेव थ्योरी फेल हो गई और लाइट की अलग ही पार्टिकल थ्योरी, जो फोटोन थ्योरी है उसको पार्टिकल थ्योरी बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ लाइट में कुछ भी, यानी कि लाइट इज बेसिकली रेडिएशन। तो इस रेडिएशन की कोई फिक्स नेचर नहीं है, मतलब साइंटिस्ट लोगों को एक बात समझ में आ गई, और डी ब्रोगली उनमें से सबसे फेमस था। और बड़ा उसमें से डाउट आ गया कि भाई यार फिर क्या माना जाए, मतलब लाइट को, ये अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी, एक्सरे, इनको क्या माना जाए, वेव माना जाए कि इनको पार्टिकल माना जाए। तो तब इस बात का जो सॉल्यूशन है वो डी ब्रोगली ने दिया, बोले कि इस नेचर में जो पार्टिकल होता है, जो रेडिएशन होता है, उसकी ड्यूअल नेचर होती है, और ड्यूअल नेचर लेके ही हमको आगे बढ़ना है। मतलब आप उसको किसी एक नेचर में नहीं बांध सकते। मतलब जैसे हम लाइट की बात करें तो लाइट इज बेसिकली रेडिएशन। जब लाइट के बारे में स्टार्टिंग आइडिया दिए गए तो लाइट को क्या माना गया, इस तरह का रेडिएशन माना गया, लाइट रेडिएशन।
फिर लाइट को वेव माना गया, और फिर बाद में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जब इसको क्या माना गया, पार्टिकल, फोटोन माना गया। तो लाइट की प्रॉपर्टीज को पूरा एक्सप्लेन करने के लिए हम उसको किसी एक प्रॉपर्टी में कंपाइल नहीं कर सकते। लाइट की वेव नेचर और पार्टिकल नेचर में से हम ये नहीं कह सकते कि वेव नेचर इज नॉट पॉसिबल, पार्टिकल नेचर इज पॉसिबल, और हम ये नहीं कह सकते कि पार्टिकल नेचर इज पॉसिबल, वेव नेचर इज नॉट पॉसिबल। दोनों नेचर पॉसिबल होती है, मतलब उसकी वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों एग्जिस्टेंस में साथ साथ रहती है। बट हमें क्या होता है कि एट ए टाइम किसी पर्टिकुलर फिनोमिना में वो एक ही नेचर ऑब्जर्व होती है। अच्छा, अब इसका कन्वर्स सोचा गया कि भाई जब कोई रेडिएशन है, जैसे हमारा लाइट हुआ, अल्ट्रावायलेट हुआ, उसका बेसिक रेडिएशन वेव नेचर है, तो वो पार्टिकल नेचर भी शो कर रहा है। तो क्या इसी तरह से कोई पार्टिकल्स भी जो हैं उनमें को वेव नेचर होता है क्या? मतलब कन्वर्स समझ रहे हो ना आप, कि भाई जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये बेसिकली क्या है, पार्टिकल्स है। तो क्या ये पार्टिकल्स है, तो क्या किसी पार्टिकल के साथ कोई वेव का एसोसिएशन हो सकता है? तो यहां पे फिर डी ब्रोगली आया अपनी रिसर्च लेकर, उसने बोला बिल्कुल इसका कन्वर्स भी प्रूफ है। जब हम किसी रेडिएशन के बारे में बोल रहे हैं कि उसका वेव नेचर के साथ साथ उसका पार्टिकल नेचर भी एग्जिस्ट करेगा इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, तो इसी तरह से यदि कोई बेसिक पार्टिकल है और वो पार्टिकल यदि बहुत हाई वेलोसिटी से जा रहा है, यदि कोई पार्टिकल हाई वेलोसिटी से जा रहा है, मूव कर रहा है, तो ड्यूरिंग द मोशन ऑफ पार्टिकल देयर इज ऑलवेज एन एग्जिस्टेंस ऑफ वेव। क्या बोला मैं? वेन एवर एनी पार्टिकल इज मूविंग विद वेरी हाई वेलोसिटी, देन ड्यूरिंग द मोशन ऑफ दैट पार्टिकल always there is an existence of the wave, always there is an existence of the wave associated with this particle। हमेशा उस पार्टिकल की मोशन के कारण उस पार्टिकल के साथ एक वेव का एग्जिस्टेंस होता है, होगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज मैटर वेव। मतलब पार्टिकल की मोशन के कारण उससे एसोसिएटेड वेव, जो कि उसकी ड्यूअल नेचर को रिप्रेजेंट करती है। तो वहां पे भी पार्टिकल का भी ड्यूअल नेचर हो गया कि एक तो उसकी खुद की ओरिजिनल पार्टिकल नेचर, और एक उसकी वेलोसिटी के कारण उसके साथ एक वेव का एग्जिस्टेंस भी होता है, दैट इज कॉल्ड वेव नेचर। यानी कि कोई भी पार्टिकल जब बहुत हाई वेलोसिटी से मोशन करता है तो उसके कारण एनर्जी भी प्रोपोगेट होती है। भाई वास्तव में वेव क्या है? वेव मतलब एनर्जी प्रोपोगेशन का तरीका, ये लोग क्लास में पढ़ा था। वेव क्या है? in the form of disturbances, fluctuations, when energy propagates one place to another place, then we say this series of disturbance, this series of fluctuation as a wave। ये wave की definition आपने 11th क्लास में पढ़ी थी। तो like that, whenever any particle move with very high velocity, what I told, whenever any particle move with very high velocity, then due to motion of that particle, always there is an existence, always there is an existence of wave associated with a particle, existence of wave associated with the particle, that is called as, उस वेव को क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड एज मैटर वेव। उसको क्या बोलेंगे? मैटर वेव। यही मैटर वेव होती है कि वेन एवर द पार्टिकल इज मूविंग विथ वेरी हाई वेलोसिटी, then due to its high velocity always there is an existence of wave, that is called matter wave, and wavelength of this wave is called as wavelength of this wave is called as डी ब्रॉगली वेवलेंथ। उसको क्या बोलेंगे? डी ब्रॉगली वेवलेंथ।
वेवलेंथ ऑफ दिस वेव इज कॉल्ड एज डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो समझ में आ गई मेरी बात? ये है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। अब इसकी वेवलेंथ का फॉर्मूला निकालने के लिए डी ब्रोगली ने क्या किया, फोटोन को लेके चला। वो किसको लेके चला? वो फोटोन को लेके चला। तो कैलकुलेशन ऑफ डी ब्रोगली, एक्चुअली ये चीज आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ रखी है, बस एक तरह से आप इसको रिवीजन मान लो। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ को अपन कैसे निकालते हैं? तो डी ब्रोगली वेवलेंथ के निकालने के लिए हम क्या कंसीडर करते हैं? कंसीडर ए फोटोन। क्या कंसीडर करते हैं अपन? ए फोटोन। देन बाय द आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन, उस फोटोन की जो एनर्जी हो जाएगी E इक्वल्स टू mc² हो जाएगी, क्योंकि फोटोन की वेलोसिटी क्या होती है? लाइट के इक्वल बताई गई है। फोटोन की वेलोसिटी क्या होती है ऑलवेज स्टूडेंट्स? लाइट की वेलोसिटी के इक्वल होती है। और बाय प्लैंक हाइपोथेसिस, जो प्लैंक की हाइपोथेसिस है, उससे उसकी एनर्जी क्या होती है? h न्यू, और न्यू को लिख सकते हैं c बाई लैम्डा, इसको इक्वल mc² इक्वल्स टू mc² को हमने mc इंटू सी कर दिया, ये c से c कैंसिल, तो लैम्डा इक्वल्स टू हो गया m इंटू सी। दिस इज मास इंटू वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड मोमेंटम ऑफ द फोटोन। तो ये हमारा इस तरह से क्या बन जाता है? लैम्डा का फॉर्मूला बन जाता है। दिस इज कॉल्ड m इंटू सी, दैट इज कॉल्ड मोमेंटम ऑफ द फोटोन। तो इसमें कुछ भी नहीं है, एग्जाम में ये फॉर्मूला डिराइव करने को नहीं आएगा, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस आएंगे। दैट इज, तो दैट मींस स्टूडेंट डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में कुछ और बातें हैं, छोटी मोटी फॉर्मूले हैं, वो मतलब एक दिन का चैप्टर और बचा है। ये नेक्स्ट टर्म में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। मैंने पहले ही देखा, छोटा सा चैप्टर है, नन्ना मुन्ना सा, और ज्यादा टाइम नहीं लेगा ये। और देख लिया, आज थर्ड क्लास है, एंड फोर्थ एक क्लास हो लगेगी कल वाली, और उस पे ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना स्टूडेंट? अच्छा चैप्टर है, छोटा सा। ऐसे एटम वाला चैप्टर भी छोटा सा चैप्टर है, 2 या 3 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा हमारा। और एटम वाला चैप्टर के बारे में तो ये कि वो एटम वाला चैप्टर तो आप लोगों ने एक तरह से पूरा पढ़ा हुआ है अपने 11th में, एटॉमिक स्ट्रक्चर में, रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, बोर मॉडल, बोर अप मॉडल, पॉस्टुलेट्स, वही रेडियस और व्हाट वी कैन से एनर्जी, और वही हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, लाइमेन, बामर, पास्टन, वही सब उसमें दे रखा है। तो एक तरह से एटम वाला चैप्टर तो आपका हुआ ही मानो। वो तो एक तरह से आपने बस एक बार पढ़ रखा है, एक बार तो एक बार और आपको पढ़ा देंगे, हम भी पढ़ाएंगे, ऐसी बात नहीं है। और फिर आता है न्यूक्लियाई। ठीक है, तो ये छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। वी आर एक्सपेक्टिंग टू कंप्लीट दिस ऑल पोर्शन बिफोर विंटर वेकेशन। विंटर ब्रेक स्टार्ट होने के पहले हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम ये मॉडर्न फिजिक्स वाले चैप्टर तीनों कंप्लीट कर देंगे, तो फिर हमारे पास रह जाएगा केवल सेमीकंडक्टर और वेव ऑप्टिक्स। ठीक है बच्चों? कम्युनिकेशन सिस्टम ऑलरेडी लास्ट ईयर ही हटा दिया गया था, और इस बार भी वो हटा हुआ ही है। तो कम्युनिकेशन सिस्टम विल नॉट बी कमिंग इन योर एग्जाम्स। ओके, तो दैट इज, तो स्टूडेंट दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपको क्या करना है, 11.1 से लेके 11.19 तक के कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, उनको करें थोड़ा सा, है ना? हम जल्दी एक वर्कशीट डालेंगे। और अभी फिर मैं, आज देखो अच्छी स्ट्रेंथ है, 38 बच्चे हैं। मैं आपको फिर कह रहा हूं, जिन बच्चों ने सैंपल पेपर सोल्व करके और मिड टर्म वेकेशन का, अभी केवल मैंने कल भी देखा था, ओनली 14 स्टूडेंट्स है अपलोडेड। दीज 14 स्टूडेंट्स आर वेरी गुड स्टूडेंट्स। दिवाली वेकेशन के बाद भी देखो कितने दिन बीत गए हैं। 23rd को अपलोड करना था, लेकिन आज हो गया है 3+10, मतलब तकरीबन 12-13 दिन हो गए हैं। बट इवन दो मेनी स्टूडेंट्स हैव नॉट अपलोडेड द सॉल्यूशंस एंड होमवर्क। हर चीज जो आपको यहाँ पे गूगल क्लासरूम में दी जा रही है, उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जा रहा है स्टूडेंट। डोंट टेक इट कैजुअली प्लीज। आप जब तक इस स्कूल का हिस्सा है, यू आर द पार्ट ऑफ दिस स्कूल, यू हैव टू टेक सम टेंशन। ज्यादा टेंशन हम भी नहीं देना चाहते हैं आपको, लेकिन कम से कम मिनिमम इतना तो थोड़ा। दिवाली वेकेशन के बाद भी 10 दिन और हो गए, अभी भी कल मैंने देखा था गूगल क्लासरूम पे, तो वही 14-15 बच्चों का होमवर्क आया हुआ है। तो ये अच्छी बात नहीं है।